قسم والے جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں پہ نزلہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارے اس چیز کی جڑ رہے ہیں، وہ اس فساد کی جڑ رہے ہیں، وہ اس دہشت گردی کی پیداوار رہے ہیں۔ الطاف حسین کی موجودگی میں یہی مصطفیٰ کمال صاحب، یہی خالد مقبول صدیقی صاحب جب وہ وہاں پہ خطاب کرتے تھے اور بولتے جی ہڑتال کرنی ہے تو یہ سارے سامنے بیٹھ کے سر جھکاتے تھے، جی بھائی جی بھائی جی بھائی کر رہے ہوتے تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا ایم کیو ایم پر کراچی کو برباد کرنے کا الزام، دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم کے لوگ واٹر بورڈ اور کے این سی کے ڈبل تنخواہ لیتے تھے، فٹ پاتھ پتھارے والوں کو بیچے ہوئے تھے، کراچی میں پبلک پارکس کو شادی ہالز میں تبدیل کیا۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال بانی ایم کیو ایم کی ہڑتال کی کال پر جی بھائی کہا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے شہر سے خوف کو ختم کیا۔ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو۔ کا مسئلہ نہیں ہے، نظام کا مسئلہ ہے۔ اور جو قومیں اتنی انسیکیورٹی کیوں ہے بھائی؟ اگر وہ پیسہ یہاں لگ رہا ہوتا تو دبئی میں پراپرٹی کی قیمت نہیں بڑھ رہی ہوتی۔ اب یہ مسئلہ ملک بچانے کا ہو گیا ہے۔ سب کو یہ پاکستان میں چلانے والوں کو یہ احساس اور یقین اور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اس نظام میں آپ فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں گے تو ملک ایک عام پاکستانی کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل اور اچھی کارکردگی نہیں پہنچ سکتی۔ ملک چلانے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اس نظام میں فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں تو کارکردگی نہیں دکھائی جا سکتی۔ سندھ سمیت ہر صوبے کو اربوں روپے ملے لیکن کوئی کام نہیں ہوا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ، کہا کہ مزاحمت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس سارا پیسہ آ گیا، اگر یہی پیسہ عوام پر لگ رہا ہوتا تو دبئی میں پراپرٹی کی قیمتیں نہیں بڑھتی۔ انسانوں کا نہیں، نظام کا مسئلہ ہے۔ یہ مطالبات ایم کیو ایم کے نہیں رہے، ملک بچانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ پنجاب سے سیکھنے والے پنجاب پر انگلی نہ اٹھائیں، پنجاب بڑا بھائی ہے اور خلوص نیت سے تمام صوبوں کی رہنمائی کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب آسما بخاری کا پیغام واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لوگوں کو کام کرنے، گڈ گورننس اور میرٹ یقینی بنانا سکھایا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے کام کا آغاز کر دیا۔ جناح کارڈیالوجی میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا علاج 100% مفت ہوگا۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ توہین عدالت کی درخواست سلمان اکرم راجہ اور عزیر بھنڈاری کی جانب سے دائر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے اور طبی معائنہ کرانے کی استدعا، توہین عدالت کی مرتکب افراد کو نوٹسز جاری کرنے کی اپیل۔ توہین عدالت ہوئی ہے وہ بالکل واضح ہے، عدالت کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنا ہے، وہاں ان کی ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ ہونی ہے، یعنی کہ تشخیص بھی ہونی ہے اور علاج بھی ہونا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کے مطابق سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ راستے میں رش تھا، اس لیے بانی پی ٹی آئی کو پمز اسپتال لے جایا گیا۔ دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہوئی ہے، کہا کہ انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے واضح کیا کہ توہین عدالت ان لوگوں نے کی جنہوں نے مجمع نہ لگانے کا حکم نہیں مانا۔ پی ٹی آئی والے عدالتی فیصلے پر کہانیاں بناتے رہے۔ حکومت عدالتی حکم پر من و ان عمل کرنا چاہتی تھی مگر پی ٹی آئی والے اکٹھے ہو گئے۔ پی ٹی آئی ملوث ہو یا نہ ہو مگر سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جہاں مناسب ہوا بانی پی ٹی آئی کو لے گئے۔ پی ٹی آئی کو سمجھاتے رہتے ہیں انہوں نے مزید تجربہ کرنا ہے تو کر لیں، پی ٹی آئی کی کال پر عمل کا وقت آتا ہے تو گلیاں سنسان ہوتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پمز اسپتال لایا گیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین نے معائنے میں حصہ لیا۔ امراض چشم کے معائنے سے حاصل ہونے والی طبی رائے کو دیگر طبی تحقیقات کے نتائج کے ساتھ مد نظر رکھا گیا۔ پمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کے مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق پمز اسپتال انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔
मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसत, सिफारती असर पजीरी और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। इसराइल बाज़ हल्कों में मक्का मुआहिदे को तशवीशनाक पेशरफ्त करार दिया। गहरे सऊदी पाकिस्तानी दिफाई ताल्लुकात भारत की इलाकाई हिकमत अमली पर असरअंदाज होने लगे। बढ़ता भारतीय इसराइली स्ट्रेटेजिक ताउन पाकिस्तान के लिए मक्का मुआहिदे को अहमियत को मजीद उजागर करता है। मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। मुआहिदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। अमरीकी जरीदे FPIF ने मक्का दिफाई मुआहिदे के जरिए पाकिस्तान की बढ़ती इलाकाई अहमियत पर मजमून शाया कर दिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत पर मुस्बत रवैया रखने का इजहार। बांग्लादेशी मुशीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन लाने में किरदार अदा करे। अमरीका को बमों की नहीं सिफारतकारी की ज़रूरत है, जंग नहीं डायलॉग होना चाहिए। सेनेटर कोरी बोकर ने तकरीब से खिताब में कहा कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन पाकिस्तानियों की ताकत अमरीका की ताकत है। अमरीकी अदालत ने 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीजे की कार्रवाई रोकने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। उन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और रूस भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट जज ने गुज़श्ता रोज ट्रंप इंतजामिया की वीजा पॉलिसी कलअदम करार दी थी। वज़ीर आला पंजाब से मुल्तान के अराकीन सूबाई असेंबली की मुलाकात। मरियम नवाज का मुल्तान में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। अराकीन असेंबली को मुल्तान में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। वाज़ेह किया कि तारीख़ी शहर मुल्तान में सयाहती हब बनने की सलाहियत मौजूद है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना बेज़ाब्तियों पर एक्शन। महकमा एंटी करप्शन बेज़ाब्तियों और सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्ज़ाम पर 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म ने पेंस में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने हक़ाइक़ का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम की। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कमेटी के सरबराह होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन इस्माइल की मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत और इदारा जाती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने मलाइशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मज़ीद मार्केट तक रसाई पर जोर दिया और कहा कि मलाइशिया में पाकिस्तानी चावल, आलू, गंदम, पोल्ट्री और जानवरों की खुराक की तलब मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन, साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों की सरगोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने मलाइशिया को मुस्लिम ममालिक में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क करार दिया। कहा कि कोस्ट गार्ड के शूबे में मलाइशिया के तजर्बात से इस्तिफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिश और नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत करने की हिदायत। सैलाब में जाम हक़ अफराद के अहले खाना, तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मदद करने का हुक्म। कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की जल्द बहाली की जाए। पंजाब से ये लहर उठ रही है। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। तो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे। पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बने।
चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का कहना है कि पंजाब के लोग छोटे सूबे बनाने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के 8 डिविजन्स में सूबे बनाए जाएं तो वफाक की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा उन 8 सूबों को मिलेगा। उसके बाद सिंध में बनने वाले सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। This means that we're seeing what happens. They have no money, they have no navy, they have no air force. They are not paying their soldiers, they're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की क़यादत खत्म हो गई, कोई भी सदर बनना नहीं चाहता। इंतखाबी जलसे से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की दूसरी सतह की क़यादत भी खत्म हो गई, तीसरी सतह की क़यादत के कुछ अरकान मारे जा चुके हैं। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया, रेडार, फ़नी आलात और दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियत नहीं रही। फौज और पुलिस की तनख्वाहों के लिए रकम नहीं। अफरात ज़र 350% है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। उन्होंने कहा कि 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ ने कहा कि ईरान को तैयार होना होगा कि फ़ौज कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अवाम भूखे हों तो हुकूमतों की मुश्किल बढ़ जाती है। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि ईरान किसी भी नए खतरे के लिए भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बर्री, बहरी, फजाई दिफा और साइबर शोबों में मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ कई माह से जारी जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान इस वक्त ताकत और वक़ार की पोजीशन में है, इसलिए जंग का खात्मा बेहतर होगा। ईरानी सदर ने कहा कि पूरी दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है और अमेरिका की जानिब से स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की मजम्मत की जा रही है। वाज़ेह किया कि मुआहिदे में ईरान की जानिब से हथियार डालने या रियायत देने की कोई शिक मौजूद नहीं। अमेरिका ने चीन और दुनिया भर के ममालिक से ईरान पर मुआशी पाबंदियों की हिमायत की अपील कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का आलमी बरादरी से ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। अमेरिका का साथ ना देने वालों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी भी दे दी। चीन ने गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियों की हिमायत न करने का ऐलान कर दिया। CTD का लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। 18 दहशतगर्द गिरफ्तार, कब्जे से असलहा, डेटोनेटर्स, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 368 रुपये 29 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में डीलर्स मार्जिन में इजाफे का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची और लाहौर में धरना 7वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत का पीछा किसी सूरत ना छोड़ने का ऐलान। मुतालबात मंजूर ना होने पर जल्द हड़ताल की कॉल देने की धमकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात नुमायां होने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चने की दाल में 70 रुपये फी किलो का इजाफा। कराची में प्याज 150 रुपये और टमाटर की कीमत 250 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। अदरक और लहसुन 400 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा।
कराची के इलाके साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। कोयटा में लापता होने वाले 6 साला बच्चे की बोरी बंद लाश घर के सामने से मिल गई। बच्चा 20 अगस्त से लापता था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ने मुतालिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी में कत्ल के बाद खातून की फंदा लगी लाश वॉशरूम से मिलने के वाक़े में पेशरफ्त। पुलिस ने मकबूला के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद मकबूला के ससुर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुग़ैबर के इलाके बाड़ा में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक हमलावर मारा गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। कानून साजी की हिदायत करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हिरासगी और नुकसानदेह मवाद से महफूज बनाने के लिए कानून साजी की इस्तिदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत टेक्निक का इजलास। तरक्याती मनसूबों के जामे एजेंडे पर गौर। ख्वाजा खैला और बशाम एक्सप्रेस वे की तामीर का मनसूबा, तबादला ख्याल। लेस्को, हेस्को और पेस्को में बिजली की तकसीम के निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के मनसूबों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वाज़ेह किया कि 1 साल में सब रेलगाड़ियां अपग्रेड नहीं हो सकती। रेलवे में इस्लाहात की गई हैं, खामियां दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे के मुताबिक 88 अरब से 115 अरब रुपए तक रेवेन्यू को लेकर गए। लीज की आमदन 8 अरब से 16 अरब रुपए तक पहुंच गई। वर्चुअल असासा जात की एक्ट 2026 के तहत लाइसेंस की 10 कैटेगरीज मुतारिफ। वर्चुअल असासा जात ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के एहसास महफूज बनाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियों वाला प्लेटफॉर्म कायम कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत और पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब की गुफ्तगू। सिंध में जानवरों की सेहत, बीमारियों की निगरानी और साइंसी तहकीक में अहम पेशरफ्त। सिंध एनिमल डिजीजेज सर्विलेंस सेंटर ने पालतू बिल्ली का पहला साइंसी पोस्टमार्टम कर लिया। 2 माह की पर्शियन कैट लियोना डैस का साइंसी पोस्टमार्टम किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कामयाब पोस्टमार्टम पर महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान और माहिरीन को मुबारकबाद। तुर्की ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तुर्की ने गाजा इमदादी फ्लोटेला रोकने पर बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात वज़ारत ख़ारिजा को भेज दी गईं। रूस का यूक्रेन के शहर क्रेविडिया पर ड्रोन हमला, 14 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक 2 रूसी ड्रोन्स ने शॉपिंग सेंटर को टारगेट किया। हमले के बाद शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। जख्मियों में 22 बच्चे शामिल। कराची में चुप ताज़िए का दूसरा जुलूस लसबेला से कुछ देर बाद बरामद होगा। पहला जुलूस नशर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी थी। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग में 409 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 135 रन पर ढेर। मोहम्मद रिजवान ने 41 और शान मसूद ने 29 रन स्कोर किए। इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। हांगकांग में चीनी वैलेंटाइंस डे कीशी फेस्टिवल का इनेकाद। आसमान 2000 रंगारंग ड्रोन्स की रोशनियों से जगमगा उठा। साहिल पर ड्रोन शो में आसमान पर रिवायती चीनी दास्तान के मनाजिर पेश किए गए।